Hello everyone, Salam, Namaste, Adab and welcome to today's event. आज महफिल गज़ल में पूनम मीरा जी और कपिल भारद्वाज जी हम लोग के साथ हैं। दोनों पोइट्स हैं एंड पूनम मीरा जी बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड सिंगर हैं। दानिश साहब की बहुत ख़ास सर्कल में भी हैं और पूनम जी पहले भी हम लोग के साथ जुड़ चुकी हैं। आज की महफिल में वो अपनी कुछ पोएम्स भी सुनाएंगी एंड एज वेल एज वो जो मास्टर पोइट्स हमारे हैं दाग देलवी हुए, मीर हुए, इन लोगों के मोमिन वगैरह का शायद कुछ गज़लें भी आएंगी। तो हम लोग शुरू करने से पहले आपको जस्ट रिमाइंड करते हैं कि आज 9/11 है और अमेरिका आज के दिन बहुत ही लोगों को रिमेंबर भी कर रहा और बहुत ही सैडनेस की एक फिजा है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसमें हम लोगों को भी रिमेंबर करना चाहिए और इस सिलसिले में मैंने डॉक्टर हाशमा हसन से रिक्वेस्ट की थी कि फ्यू मिनट्स के लिए वो कुछ अपने इम्प्रेशंस दें और उसके बाद हमारी कलीग प्रीति गोविंदराज जो बहुत अकॉम्प्लिश सिंगर हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि एक स्पिरिचुअल सॉन्ग उसके बाद वो सुनाएं और उसके बाद बाकायदा हमारा प्रोग्राम जो है शुरू होता है। तो डॉक्टर हाशमा हसन प्लीज। हाशमा आपा जी, okay. Good morning, salam alaikum and namaskar. As we gather here this morning for Mehfil-e-Ghazal, we would like to start by paying tribute to all those who lost their lives 20 years ago on this day, 9/11, as well as to those brave first responders who risked their lives to save others. Our heart also goes out to those who lost their loved ones that day and to those who continue to suffer nightmares and health issues caused that day. It was a beautiful, crisp morning in Washington, D.C. on 9/11, 2001, with a clear blue sky and a nip in the air, signaling the onset of fall. As I walked towards NASA headquarters, there was a feeling of exhilaration as I was about to lead a review to decide which NASA center would manage the newest instrument we had selected for our next flagship mission, the Next Generation Space Telescope, later renamed the James Webb Space Telescope. Little did I know that a couple of hours later, the world would change forever. New York, Washington, D.C., and central Pennsylvania would be under a terror attack. That was the day when, for the first time in my life, as I stepped out in the streets of Washington, D.C. in the afternoon, there was an eerie silence. Other than the police, there was not a soul on the freshly barricaded streets. Standing alone on the platform in the bowels of the Washington, D.C. metro system, I jumped on to the first train that came just to get out of the city. That was the kind of bewilderment playing out all over the country and indeed the world. That was the day the age of innocence in the US ended forever. In the days that followed, as details of the attack and its perpetrators started coming out, attacks on the US Muslim community, as well as those who physically resemble them, such as the Sikh community, saw hate crimes being committed against them. Unbeknownst to many of us, our children started experiencing discrimination against them, some of it blatant, some implicit. Despite the sight of the US society rearing its ugly head, we saw that there was far more goodness and tolerance in this wonderful country of ours. That was a time when the best came out of people to counteract
the worst that came out of some. 20 years later, we remember the strength of the US society and celebrate it. This is a moment both of remembrance and reflection. All of us should reflect on what we can do to make the world a better place so that the crimes like those of 9/11 are never repeated. I would like to end by once again thanking the first responders that day and request a 1-minute silence in the memory of those who lost their lives on 9/11/2001. Thank you. Thank you, Hashma Appa. And now I request Preeti for a song that she chose to sing. आप सभी को मेरा नमस्कार और आदाब। जो गीत, जो प्रार्थना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में बस पीस का संदेश, शांति का संदेश बनकर आए। Whether it is a mass, terrorist attack like this or a personal sorrow, I wish peace for everyone.
शुक्रिया। थैंक यू प्रीति, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग रेगुलर इवेंट की तरफ चलते हैं और पूनम जी और कपिल साहब जो हैं, कपिल भारद्वाज जी, ये दोनों लोगों ने आपस में कुछ कोऑर्डिनेट किया होगा या किया है, तो मैं ज़्यादा इसमें शामिल नहीं होना चाहता। अब कपिल साहब आप भी तशरीफ लाएं और पूनम जी सामने हैं, आप लोगों पे स्पॉटलाइट है, आप लोग इवेंट को अपने हाथ में लें और आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। बेहद शुक्रिया सर। महफिले गज़ल में आप सभी का खैर मकदम। मेरा नाम कपिल भारद्वाज है और मैं गुड़गांव से इस महफिल का आज हिस्सा बन रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं दानिश इकबाल सर, रियाजुद्दीन सर और पूनम मीरा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने इस महफिल की बागडोर मेरे हाथ में दी, ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। सुखन और मौसीकी जैसे आपस में लिपटी उंगलियां दो हाथों को एक बनाती हुई, और इन उंगलियों के दरमियान कोई लफ्ज, कोई मिसरा जुगनू बनकर रोशनी पैदा करता। किसी भी ख्याल के सबसे मासूम वजूद को पकड़ने की कशमकश, और इस कशमकश में हमारा अपने आप से लिपटना, अपने आप को देखना और अपने आप को खो देना, ये कमाल शायरी को हासिल है। शायरी के अगर सुल्तान कहूं तो गलत ना होगा। मीर का एक शेर पढ़ना चाहूंगा। वो कहते हैं कि वो क्या चीज है आह जिसके लिए, वो क्या चीज है आह जिसके लिए हर एक चीज से दिल उठाकर चले। ये आह जो एक एक लफ्ज है, ये आह नजर के सामने से कितने मकाम, कितनी पॉसिबिलिटीज गुजारता है, ये कमाल शायरी का है। और आगे मीर कहता है कि कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। तो शायरी का इतना केपेबल होना, किसी भी जहन के ऊपर इस तरह का असर डाल पाना, अपने आप में एक बहुत ही कमाल चीज है। मैं मीर का एक शेर और पढ़ूंगा और पूनम जी से मेरी गुजारिश है कि वो अगर कुछ मीर के अशार अपनी आवाज में हम तक पहुंचा सकें तो क्या ही बात होगी। कि जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखन ताबलब नहीं आता। इस शेर के साथ मैं पूनम जी को दावत देना चाहूंगा कि मीर के कुछ अशार हमारे सामने हैं। अगर शुक्रिया कपिल। आदाब सभी को आदाब। और प्रीति जी ने पूरे माहौल को एक बहुत खूबसूरत रंग दे दिया भक्ति का और प्रेम का। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, इट वॉज हार्ट टचिंग। सो मीर से शुरू करते हैं। ये गज़ल सभी ने सुनी है और मेरे दिल के बहुत करीब है। मीर का बेहद खूबसूरत कलाम है और मेहदी हसन साहब की कॉम्पोजिशन है, उन्हीं की गाई है। कोशिश करूंगी कहीं तक निभा पाऊं।
बस्ती बस्ती आँख उड़ी जंगल जंगल ये धुआं पल खाता उठे जैसे कालीना देख तो दिल के जान से उठता है देख तो दिल के जान से उठता है धुआं सा कहाँ से उठता है गौर किस दिल चली है ये फलक गौर किस दिल चलेगी है ये फलक शोलाइक सुबह यहाँ से उठता है धुआं सा कहाँ से उठता है बैठने कौन दे फिर उसको बैठने कौन दे फिर उसको जो तेरे आस्था से उठता है धुआं सा कहाँ से उठता है यूं उठे उस गली से हम यूं उठे उस गली से हम जैसे कोई जहाँ से उठता है धुआं सा कहाँ से उठता है देख तो दिल इश्क एक मील
देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। बहुत वाह शुक्रिया जी। वाह, बैठने कौन दे है अब उसको, क्या खूब, बहुत खूबसूरत गाया। एक शेर मिर्जा गालिब का भी ऐसे जहन में कौंधा, और मैं चाहता हूँ कि गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, दरो दीवार से टपके है बयाबां होना। गालिब कहता है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। वाए दीवानगी ये शौक के हरदम मुझ में, वाए दीवानगी ये शौक के हरदम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। ये जो हैरानी शायरी हमारे जहन में पैदा करती है, हमारे मन, हमारे आत्मा के थ्रू ट्रेवल करती है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और पंजाबी में अगर बोलूँ तो सदके जावा इस हैरानी पे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं पूनम जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मीर के बाद अगर गालिब के कुछ अशार वो अपनी आवाज़ में हम तक पहुँचा सकें तो करम होगा। पूनम जी गालिब। जरूर जरूर। गालिब के बिना तो सब कुछ अधूरा है। उनको तो गाना ही है। फिर मुझे दीदाई तर याद आया, फिर मुझे दीदाई तर याद आया, दिल जिगर तृष्णाई फरियाद आया, दिल जिगर तृष्णाई फरियाद। दम लिया था ना कयामत ने हनूस, दम लिया था ना कयामत ने हनूस, ये तेरा वक्त सफर याद आया, ये तेरा वक्त सफर याद। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर आया, क्यों तेरा राह गुजर कोई भी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, दश्त को देख के घर
वंडरफुल वंडरफुल। थोड़ा सा मैं ये कहूंगा पूनम जी कि थोड़ा सा कहीं आवाज का थोड़ा सा मसला हो रहा है, हल्का सा जैसे लगता है कि आपकी फुल आवाज जो है ना वो कहीं दब जाती है या वेव आ जाती है। इंटरनेट का हो सकता है, जो भी इशू हो। और पास आ जाऊं इसके शायद। बिल्कुल। तो या तो वो जो आप हाथ में शायद फोन है आपका, अगर वो स्टे रहे एक जगह रहे, समथिंग इज देयर ओके ओके ओके। जी। तो आपका जो फुल ऑब्वियसली इट इज सो गुड, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन हो जा रहा है। सॉरी फॉर दैट। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आई थिंक वो सॉल्यूशन है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये गाना, ये गजल गाई, और अरे ऐसे जैसे कोई दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है, इतनी खूबसूरती से एक एक मिसरा दिल में उतरता रहा और मजा आ गया। बहुत ही खूबसूरत। पूनम जी, आपकी आवाज तो कमाल है, बेहद, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको काफी अरसे से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप कहती बहुत अच्छा है। आप खुद गजल और नज्म की बहुत ही उम्दा वो हैं, राइटर हैं। मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप महफिल की नज़र अगर अपना कुछ कहा पेश कर सकें तो बहुत ही बहुत उम्दा है। जरूर। एक गजल पढ़ना चाहूंगी। जी। निशाते रंग, आवाज आ रही है जी। निशाते रंग अजाबे खिजां मुझी से है। निशाते रंग अजाबे खिजां मुझी से है। चमन में बिखरी हर एक दास्तां मुझी से है। वाह वाह, जबरदस्त भाई। चमन में बिखरी हर एक दास्तां, बहुत शुक्रिया, मुझी से है। नजर झुका के कभी देख मुझ जमी की तरफ। नजर झुका के कभी देख मुझ जमी की तरफ। मेरे अजीज तेरा आसमां मुझी से है। बहुत खूब, वाह 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 वाह। मेरे अजीज तेरा आसमां मुझी से है पाँव ख्वाब में एक, है पाँव ख्वाब में एक और एक हकीकत में, है पाँव ख्वाब में एक और एक हकीकत में। मेरी हयात तू बेआशियां मुझी से है। उठेगा दश्त से जब भी धुआं समझ लेना। उठेगा दश्त से जब भी धुआं समझ लेना। सबब हो आग का कुछ भी धुआं मुझी से है। बहुत खूब बहुत खूब। सबब हो आग का कुछ भी धुआं मुझी से है। ये जिस्म होने न देगा रसाई रूह तलक। ये जिस्म होने न देगा रसाई रूह तलक। ए आईने तेरा बारे गरा मुझी से है। वाह वाह, माशाल्लाह। आईने तेरा बारे गरा मुझी से है। ये चांद तारे ये जुगनू है सब तेरे लेकिन। ये चांद तारे ये जुगनू है सब तेरे लेकिन। उदास शब तेरा हर तारे जां मुझी से है। उदास शब तेरा हर तारे जां मुझी से है। मैं एक झील हूं ठहरी हूं अपनी वुसअत में। आखिरी शेर है। मैं एक झील हूं ठहरी हूं अपनी वुसअत में। मेरी तलाश का रब्ते नेहा मुझी से है। बहुत ही मेरी खूब, तलाश बड़ी का बड़ी अच्छी रब्ते गजल लिखी आपने और जबरदस्त। और मेरे ख्याल से बार बार कपिल साहब को बुलाना चाहिए आपको, आपकी अपनी गजल नज़में सुनाने के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद अगली किसी एक गजल को आप तरन्नुम से भी पढ़ें तो ज्यादा मुनासिब। जरूर जरूर जरूर। तो ये मौका हाथ में आते ही मैं आपसे अगर दरखास्त कर सकता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपना ही कुछ एक और अगर आप पेश करें, अपनी डायरी का कोई और पेज।
अगर आसान है तो। हाँ हाँ तरन्नुम में आप चाहते हैं या पढ़ूं? जैसा आप मुनासिब समझें। तरन्नुम में से। बेसबब बार बार आती है, बेसबब बार बार आती है, याद में प्यार आती है, याद में प्यार आती है। माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। किसको दरकार है ये रंगो, किसको दरकार है ये रंगो, किसकी खातिर बहार आती है, किसकी खातिर बहार आती है। लूट लिया आपने, जबरदस्त। फिर से पढ़े ये शेर। आहा, आवाज़ अपने चेहरे को, एक आवाज़ अपने चेहरे को, घर के बाहर उतार आती है, रात ही से हो क्यों गिले शिकवे, सुबह कब हम गुसार आती है, सुबह कब हम गुसार आती है, अपनी बेताबियों को कम करने, अपनी बेताबियों को कम करने, मौज दरिया के पार आहा, आहा, आहा। मौज दरिया के पार आती है, याद बेख्तियार आती है, बेसबब बार बार आती है। वाह वाह। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा फैसल से कि वो लोगों को म्यूट कर दें। आपकी वाकई आपके लिए ताली बजाना बहुत जरूरी है, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी। जबरदस्त गजल आपने लिखी भाई, और क्या तरन्नुम है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। नो डाउट, आई एम सरप्राइज लिटिल बिट। इतना प्यारा लेसन में रखी है। बहुत खूबसूरत तखय्युल, बहुत खूबसूरत अदायगी और बहुत खूबसूरत आवाज। बहुत बहुत जबरदस्त, शुक्रिया। माशाल्लाह परवीन शाकिर का है रंग। माशाल्लाह अरे माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत शुक्रिया। लेकिन जबरदस्त लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत उम्दा, बहुत बहुत सुंदर। चले भाई, बैक टू कपिल जी। जी, किसी ख्याल को रोजगार की तरह जी पाना बेहद खूबसूरत होता है। और आपने ये जो गजल गाई, बीच में मैं देख पा रहा था कि सब चाहते थे कि अभी ये खत्म ही ना हो और ये बस शेर पे शेर आते ही जाएं, आते ही जाएं। दाग दहलवी का एक शेर मैं पढ़ना चाहूंगा कि आफते रोजगार जब तुम हो, आफते रोजगार जब तुम हो, शिकवाए रोजगार
कौन करे, आपका एतबार कौन करे, रोज का इंतजार कौन करे। और दाग कहता है कि दाग की शक्ल देख कर बोले, दाग की शक्ल देख कर बोले, ऐसी सूरत को प्यार कौन करे। और अब दाग के इन शेरों के बाद मैं पूनम जी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि दाग के कुछ अशार अगर इस महफिल के सामने वो अपनी तरन्नुम में रखें, जरूर जरूर। बेहद मजा आएगा। बहुत शुक्रिया। नहीं सुनते तो हमें को सुनाते भी नहीं, उज़्र आने खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, उज़्र आने हो चुका तरके ताल्लुक तो जफ़ाई क्यों हो, जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं, उज़्र आने ज़िस्त से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते
बहुत ही खूबसूरत। ऐसा लगा है जैसे रंगों की बारिश दिल्ली, पूरी दिल्ली और गुड़गांव में वैसे ही इतनी बारिश हो रही है और इतने रंग गिर गए, मजा आ गया। बहुत ही खूबसूरत पेशकश। मुझे भी सुना के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में एक जी। फैज का शेर जहन में आया है कि, और मैं थोड़ा उसे तोड़कर भी पेश करना चाहूंगा अगर इजाजत है तो, कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, और गाओ के महफिल का कारोबार चले। और बहुत ही खूबसूरती से आपने जो गजल गाई, मजा आ गया। शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दाग के बाद अगर कोई नाम शायरी के जगत में, शायरी की दुनिया में बहुत महबूब और खूबसूरती से कायम हुआ है तो फैज़ का है। और अगर कुछ अशार आप फैज़ के हमें सुना सकें तो बहुत आपका आभार। जी बिल्कुल। फैज़ के अशार मैं पढ़ती हूँ। ये मखदूम की ज़मीन पे लिखे हुए अशार हैं। एक फिल्म में ये मेरे दिल के, ये जो धुन है जयदेव साहब की धुन है। अब जबरदस्त। मेरा मसला ये है कि मुझे शायरी और मौसीकी दोनों खींचती हैं। अच्छी धुन भी खींचती है और अच्छे अल्फाज भी खींचते हैं। तो ये जो एक धुन है ये मुझे बहुत ही मेरे दिल के करीब, और उस पे फैज के अशार हैं चांदनी जो मुस्कुरा। फिल्म में गाई गई है। उन पे मखदूम साहब के अशार हैं, लेकिन ये अशार फैज साहब के हैं। मैं आपकी आती रही रात भर, चांदनी दुखाती रही रात भर, आपकी आती रही। गाह जलती हुई, गाह बुझती हुई, गाह जलती हुई, गाह बुझती हुई, शिम गम झिलमिलाती रही रात भर, शम्य गम झिलमिलाती रही। कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई तस्वीर गाती रही रात भर, कोई तस्वीर गाती रही। फिर सवास आए शाख गुल के तले, फिर सवास आए शाख गुल
एक ऐसा सुनाती रही जो लाया उसे कोई जंजीरे दर जो लाया उसे कोई जंजीरे दर हर सदा पर बुलाती रही रात भर हर सदा पर बुलाती रही एक उम्मीद से एक उम्मीद से दिल बहलता रहा एक उम्मीद से दिल बहलता रहा एक तमन्ना सताती रही रात भर आपकी याद आती रही रात भर चांदनी दुखाती रही रात भर आपकी याद आती रही माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत पेशकश, बहुत ही खूबसूरत। मखदूम की दो गजलों पर फैज ने गजल कही और फिराक गोरखपुरी का एक शेर जो मेरे बेहद करीब है कि किस तरह दीजिए मिसराए मखदूम की दाद, किस तरह दीजिए मिसराए मखदूम की दाद, गमजदों तेशे को चमकाओ कि कुछ रात कटे। फैज के बाद मैं पूनम जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो अपनी किसी गज़ल को हमें पढ़कर तरन्नुम में या जैसे भी सुनाना चाहें तो पढ़ देती हूँ थोड़ा। ऐसा। हाँ, एक गजल आप सबकी नजर करती हूँ। जी। दश्त आंखों में था, आवाज में वीरानी थी। दश्त आंखों में था, आवाज में वीरानी थी। खा गया शहर उसे, कहते हैं दीवानी थी। खा गया शहर उसे, कहते हैं दीवानी थी। लम्स एक धूप का काफी था समझ जाने को। लम्स एक धूप का काफी था समझ जाने को। बर्फ था जिस्म मगर रूह रवां पानी थी। बर्फ था जिस्म मगर रूह रवां पानी थी। माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। जब तलक इश्क सुनाता रहा, हम सुनते रहे। वाह वाह। जब तलक इश्क सुनाता रहा, हम सुनते रहे। बाद उसके तो कहानी बड़ी बेमानी थी। बाद उसके तो कहानी, शुक्रिया, बड़ी बेमानी थी। एक लहजे में नजर आ गया था सच हमको। एक लहजे में नजर आ गया था सच हमको। जीस्त आंखों से गुजरती हुई पुरानी थी। वाह वाह वाह।
जीस्त आंखों से गुजरती हुई उरियानी थी, देखते देखते आंखों में उतर आई थी, देखते देखते आंखों में उतर आई थी, हर नजारे में निहा एक नई हैरानी थी। वाह वाह माशाल्लाह, वाह वाह। हर नजारे में निहा एक नई हैरानी थी। मैंने खुद पर कभी होने न दी जाहिर, लेकिन मैंने खुद पर कभी होने न दी जाहिर, लेकिन मुझ में तेरी कमी हर शख्स ने पहचानी थी। ओह माशाल्लाह। मुझ में तेरी कमी हर शख्स ने पहचानी थी। और ये मतलब अर्ज करती हूँ कि तुमने बेकार ही हाथों को जलाया मीरा, तुमने बेकार ही हाथों को जलाया मीरा, आग कुछ देर में वैसे भी तो बुझ जानी थी। वाह 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 वाह, फिर से पढ़े, वाह 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 वाह। तुमने बेकार ही हाथों को जलाया मीरा, आग कुछ देर में वैसे भी तो बुझ जानी थी। बहुत शुक्रिया। तो परवीन शाकिर फिर से जिंदा हो गई लगता भी। अरे 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 क्या बात है, वाकई आज बहुत दिनों बाद परवीन शाकिर को आप खींच के ले आई। माशाअल्लाह, जबरदस्त भी, बहुत अच्छी लिखती हैं। अब अगला तरन्नुम से आपका होना चाहिए, आपकी गजल जो है बहुत जरूरी है तरन्नुम से। तो भाई फरमाइश आई है, आप लेना चाहेंगी? ठीक है, तरन्नुम से मैं थोड़ा, ठीक है। भागती हूँ गज़ाल के पीछे, दूर तक ख्याल के पीछे, 100 बरस की वो रात लाई है, एक सदी है ज़वाल के पीछे। अपने हर एक जवाब की जानिब चल रही हूँ, सवाल के पीछे। एक परछाई साथ रहती है, हिज्र में और विसाल के पीछे। तुम खुदा हो यकीन है दिल को है, यकीन है तमाम के पीछे। हाथ बांधे हुए चलो मेरा, उन सितारों की चाल के पीछे, दूर तक एक ख्याल के पीछे। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत
बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। काफी गहराई और बड़ी ही खूबसूरत मंजिल पर आप पहुंची है आज की महफिल। मेरी गुजारिश पूनम जी से है कि कुछ अगर थोड़ा हम लाइट म्यूजिक और जो फिल्मी गजलें हैं उन सब की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाएं तो। जी जी, एक्चुअली मैं फिल्म की जो गजलें हैं जो वो उनको इतनी अहमियत नहीं मिलती है और उनको एक फिल्मी गाने की तरह ही ट्रीट कर लिया जाता है, जो मैंने देखा है। लेकिन फिल्म में इतनी खूबसूरत गजलें हुई हैं, कहीं भी गई बहुत अच्छी हैं, और कॉम्पोजिशंस मदन मोहन साहब जो थे, इतनी बढ़िया कॉम्पोजिशंस कर गए हैं वो कि कोई सानी नहीं है उनका गजल कंपोज करने में। तो मैं जाती तौर पे उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मदन मोहन साहब की। मतलब ये जो इमॉर्टल चीजें हैं जो वो बना के गए हैं, तो मैं आपको एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट उसके करने के लिए भी मैं ट्रैक पे सुनाती हूँ आपको एक दो गजलें जो मुझे बहुत पसंद है। एक गजल मैं आपको आपने सुनी होगी, ये फिल्म मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन है और मौसम है शायद इस पिक्चर, गुलजार साहब का लिखा हुआ है और मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन है। रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले। सो इजाजत हो तो मैं ट्रैक भी बजाऊंगी और ट्रैक पे गाने की कोशिश करूंगी। श्योर श्योर। जी।
फर्ज भी उतार चलिए करार देके तेरे दर से बेकरार चलिए रुके रुके से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे एक और गजल याद आ रही है, ऐसी जो फिल्मों में काफी फेमस गजल के तौर पर हम उसके बड़े फैन हुआ करते थे, रस्मे उल्फत को निभाएं। मैं सुनाऊंगी, इजाजत है? जी जरूर। वो भी ट्रैक पे ही सुनाती हूँ। आवाज ठीक है ट्रैक की? नहीं, अभी तो कुछ कटी हुई आ रही। जी जी ओके। रस्मे उल्फत को निभाई तो निभाई कैसे, रस्मे उल्फत को निभाई तो निभाई कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए। दिल की राहों में उठाती है जो दुनिया वाले, दिल की राहों में उठाती है जो दुनिया वाले, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए। बोझ होता जो ज़माने का उठा भी
शुक्रिया जी। बहुत बहुत खूबसूरत। पूनम जी, आपका तखल्लुस मीरा एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी प्लीज। कपिल खुद भी एक अच्छे शायर हैं और गजलें कहते हैं। अब कुछ आप भी सुनाइए प्लीज। बिल्कुल, यही मैं कहने जा रहा था कि भाई अब टाइम आ गया, थोड़ा आप भी तो कुछ जनाब। जी, मैं कुछ मिसरे आपके सामने रखता हूँ और मैं बहुत ही थोड़ा सा वक्त लूंगा। मतलब देखिए कि एक मंजर जब मिला तन्हा मुझे, वाह वाह वाह, एक मंजर जब मिला तन्हा मुझे, रास्ता लगने लगा अच्छा मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। रात की आदत है दिल खाली करे, रात की आदत है दिल खाली करे, दिन बताओ कब तलक भरता मुझे, वाह 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 वाह। दिन बताओ कब तलक भरता मुझे। और जिंदगी क्या है फकत तेरे सिवा, जिंदगी क्या है फकत तेरे सिवा, और तुझको जिंदगी करना मुझे। वाह 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 वाह, वाह भाई, जबरदस्त। वाह वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक शेर और कहूंगा कि एक गम कैसे मसल्लत हो गया, देख गम कैसे मुसल्लत हो गया। एक गम एक कैसे एक। मसल्लत हो गया, जाते जाते काश कह जाता हूँ। ओह, वाह 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 वाह। और अब मैं वापस रिटर्न मोड में आता हूँ कि पूनम जी, आपका बहुत खूब। तखल्लुस मीरा है, और यकीनन ये मीराबाई से मीराबाई की तरफ हमें एकदम से खींचता है, ले जाता है। आई एम श्योर ये आपका और मीराबाई का कोई ना कोई इसमें कनेक्शन होगा। मीराबाई कोई नाम नहीं है, वो अपने आप में एक विधा है, फिलॉसफी है, फलसफा है। हर लफ्ज, हर कृति, हर चीज जो मीराबाई की तरफ से आती है वो सिर्फ इबादत का पैराहन है, और हमारे जहन, हमारी आत्मा, हमारे हर ख्याल को सिर्फ और सिर्फ डिवोशन की तरफ ले जाती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मीराबाई का कुछ अगर आप महफिल गजल को आज सुना सकें तो जी बहुत। पूनम जी। जी, मीरा तो वही जैसे कि आपने कहा कि मीरा कोई शख्सियत, मेरे लिए कोई शख्सियत नहीं है, वो एक एहसास है। और इतना मजबूत और इतना खूबसूरत, और जैसे भक्ति का दूसरा नाम है मेरे लिए। और मुझे नाम इतना पसंद था, या मेरा मीरा से जुड़ाव इतना था, उनकी जो भी वो लिख के गई हैं, कि मुझे जब जिंदगी ने ये मौका दिया, मैंने लिखना शुरू किया, तो मैंने एकदम से मीरा अपने साथ जोड़ लिया। और तो कुछ नहीं हो सकता, नाम ही जोड़ सकती थी, सो मैंने जोड़ लिया। सो दिल से बहुत मीरा दिल में है, तो जरूर सुनाऊंगी। मीरा के बिना तो सब अधूरा है। मैं एक मीरा का भजन, आप इजाजत है सबकी? जरूर जरूर जरूर। जी, तानपुरा से। सखी रे आज बैरन सखी
चलन चाहत गोकुल ही चलन चाहत गोकुल ही ते रथ सजायो नहीं रथ चढ़ाई गोपाल नहीं गयो रथ चढ़ाई गोपाल नहीं गयो हाथ मिंजत नहीं सकी लाज नहीं सकी कठिन छाती श्याम बिछुड़त कठिन छाती श्याम बिछुड़त कठिन छाती श्याम बिछुड़त बिरह में तन दास मेरा लाल गिरिधर दास मेरा लाल गिरिधर बिखरा क्यों ना गई सखी लाज श्रीलाल गोपाल के संग काहे ना गई सखी लाज सखी बहुत खूब जबरदस्त भी, बड़ा टची था, बड़ा सोलफुल था, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, क्या भजन, वाह। आपकी मतलब शायरी ऐसा लगता है जैसे अपने आप में एक प्रेयर है, एक दुआ है, और दिल से इतनी खूबसूरती से आप जो भी कह रही हैं वो बहुत रूह तक जा रहा है, बहुत ही उम्दा। महफिल काफी खूबसूरत रही आज की, और मैं पूनम जी से मुझे ये लगता है टाइम समय तो हो गया राजी साहब शायद 10 बज गए उसका भी हाँ, थोड़ा सा एक आध मिनट निकाल लेना चाहता था। खैर खैर आप के ऊपर है, हमारे लिए तो कभी टाइम खत्म नहीं होता। आप लोग खुद ही बताएं कि अगर आप समझते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है तो वो भी ठीक है, और अगर गुंजाइश है तो वो भी ठीक है, आपके ऊपर है। तो वैसे तो यूजुअली हाँ 1.5 घंटे का हमारा रहता है। मीटिंग का कोई, असेंबली का कोई टाइम नहीं है। आई मीन इट इज अनलिमिटेड, बट यू नो देयर इज अ लिमिट फॉर थिंग्स। तो आप लोग बताएं अगर ये कंक्लूडिंग है तो भी थैंक्स वेरी मच, इट वाज रियली वेरी वंडरफुल। लेकिन आई डाउट कि अभी ये कुछ होने वाला है अभी जाते जाते, नहीं? अच्छा कपिल जी, अगर कुछ हो सके तो बेहद खूबसूरत होगा। पूनम जी आपकी तरफ डाइस फेंक रहा ये हूँ। आपके ये अच्छा हाँ हाँ आपके ऊपर है। एंडिंग वर्ड्स कुछ तो कुछ अच्छा चलिए चलिए आखिर आखिर आखिरी तरह ही होनी चाहिए हाँ बिल्कुल। ठीक है कुछ थोड़ा सा कुछ वही सुनाती हूँ। बहुत फेमस, बहुत आजकल सभी लोग ये गाते हैं, लेकिन खूबसूरत चीज है तो इसलिए सुनाती हूँ आपको। हाय
मर जाएंगे तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया न ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोकी तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह 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 वाह। अब ये बताएं, ये तो हमें गाना था ना, आपके कि आज जाने की जिद न करो। मैंने भी सुना के उतना ही एंजॉय किया है रानी साहब, बहुत अच्छा। वंडरफुल, बेहतरीन। आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा। फैसल अगर हो तुम तो यार जरा सा एक वो अनाउंसमेंट दिखा दो और सबको अनम्यूट करके, या रफत प्लीज टेक ओवर एंड मे बी पीपल वांट टू एक्सप्रेस बिफोर आई हैंड ओवर टू माय कलीग। नेक्स्ट कमिंग सैटरडे को काफी फेमस 3 प्रोफेसर्स जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से, हरियाणा से हैं, and they are going to talk on social commitment to the humanities towards a dynamic civil society. प्रोफेसर शैले वालिया बहुत ही जाने पहचाने स्कॉलर हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आप इनके आर्टिकल्स अक्सर देखते होंगे,
और उनका साथ जो है प्रोफेसर भीम सिंह दाहिया और नीलम मान सिंह दे रही हैं। तो आप लोग ज़रूर इसमें शामिल हों। प्लीज़ अटेंड दिस इज़ really going to be a very good scholarly and very informative talk. और